Hello everyone. Today we'll begin with a new poem, McCavity, the Mystery Cat. This poem is about a mischievous cat named McCavity. We'll read the poem to understand how McCavity is. First, we'll read the poem and then we'll understand the content of the poem. Basically, here a little bit of introduction is given. If you have a pet cat, you must have noticed if your pet is a mysterious one, a mischievous one, or a very calm one. It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McCavity is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? We'll read the poem and find out. McCavity is a mystery cat. McCavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. Defy means to disobey. He is the bafflement of Scotland Yard. Scotland Yard is the name of an institution where many policemen, many secret agents and spy work. Its main headquarters is in London. Bafflement means Sar Dard Hona. So McCavity is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. Flying squad means policemen who are on their toes. Immediately जो कभी भी इमरजेंसी के लिए भाग के काम में आते हैं वो फ्लाइंग स्क्वाड कहलाते हैं. सो McCavity इज फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, मतलब कि कभी भी वो उनके हाथों नहीं आया है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, McCavity इज नॉट देयर. McCavity, there is no one like McCavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of leviation means to fly in air without any support. His powers of leviation would make a fakir stare. Fakir, as you must be knowing, person who is you can say हिंदी वर्ड है ये फ़कीर, मतलब कि जिसका कोई घर वगैरह नहीं होता है, जो रोड पे होते हैं. और इसका दूसरा मीनिंग ये भी है दैट देर आर पीपल who do black magic, they are also called as fakir. So here the fakir word resembles people who do black magic. So McCavity के जो पावर्स है हवा में उड़ने के, वो एक जादू करने वाले को भी सरप्राइज कर सकते हैं. And when you reach the scene of crime, McCavity is not there. You may seek him in the basement. To seek means to search. You may look up in the air. But I tell you once and once again, McCavity is not there. McCavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. Sunken का मतलब होता है अंदर डूबी हुई. His brow is deeply lined with thought. His head is highly doomed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. कोट का मतलब होता है कैट का जो फर होता है उसे हम कोट कहते हैं. विस्कर्स का मतलब कैट की जो मुस्टैच जैसे बाल होते हैं फेस पे, दे आर विस्कर्स. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. स्वेज मीन्स मूवमेंट करना. विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक. एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, he is always wide awake. McCavity, there is no one like McCavity, for he is a fiend. Fiend means enemy, in feline shape. Feline means the shape of a cat's body. A monster in depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then McCavity is not there. We have read the poem. I hope many of you must have understood maximum content of the poem, but we'll read the poem line to line and understand it better now. McCavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw. Here McCavity is termed to be a mystery cat because ये कभी किसी के हाथ नहीं लगी है और ये कहाँ होता है McCavity, कब क्या करता है किसी को नहीं पता होता है. So it is termed as a mystery cat. He is also called as Hidden Paw. इसका एक दूसरा नाम भी है हिडन पॉ. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाइन द लॉ. दैट मीन्स ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो कानून के हाथ में भी नहीं आता है, मतलब कि कोई इसको पकड़ नहीं सकता है.
ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। एज आई सेड, स्कॉटलैंड यार्ड का सरदर्द बन चुका है कि इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद वो एक कैट को नहीं पकड़ पाए। और सेम तरीके से फ्लाइंग स्क्वाड का भी एक फेलियर है कि फ्लाइंग स्क्वाड जो पुलिस अच्छे अच्छे चोर लोगों को पकड़ लेते हैं बट एक कैट को नहीं पकड़ सके। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकैविटी इज़ नॉट देयर। Why is McCavity a bafflement of Scotland Yard and despair to flying squad? Because whenever they reach at the spot of crime, McCavity is never found there. He escapes. McCavity, McCavity. There is no one like McCavity. उसके जैसा और कोई नहीं है, उसके जितना स्मार्ट और शार्प माइंडेड और कोई नहीं है। He has broken every human law. He breaks the law of gravity. Human law मतलब हम humans पेट्स रखते हैं जिसमें कैट्स भी होती है। हम कैट्स को जिस तरीके से रखते हैं या एक पेट कैट को जिस तरह एक अपने ओनर के साथ, मास्टर के साथ उसके रूल्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, मैकैविटी वैसे बिल्कुल नहीं रहता है। सो हियर इट इज़ टर्म्ड ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। मोर ओवर ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे टू ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि मैकैविटी हवा में उड़ता रह सकता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठता है। हिज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। एज आई सेड, ये हवा में उड़ सकता है, दैट मीन्स ये काफ़ी लंबे टाइम तक उछल कूद कर सकता है, काफ़ी लंबे टाइम तक हवा में रह सकता है। एंड दैट वुड मेक अ पर्सन हु डज मैजिक come into surprise. And when you reach the scene of crime, McCavity is not there. You may seek him in the basement. That means हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? बेसमेंट में. You may look up in the air. हम उसे और कहाँ ढूंढ सकते हैं? ऊपर हवा में. But I tell you once and once again, McCavity is not there. दोनों ही जगह पे आपको McCavity नहीं मिलेगा. McCavity is a ginger cat. जिंजर कैट एक ब्रीड होती है, जिस तरह डॉग्स में होता है, लैब्राडोर होता है, अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स होते हैं, उसी तरीके से कैट्स में एक जिंजर कैट ब्रीड होती है। सो मैकैविटी एक जिंजर कैट है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। उसका बॉडी शेप आपको बताया हुआ है कि मैकैविटी बहुत ही टॉल है और वो बहुत दुबला पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज़ आर संकन इन। आप भले मैकैविटी को नहीं पहचानते पर उसको देखते ही पहचान जाओगे, बिकॉज ऑथर ने, पोएट ने हमें उसकी पहचान क्या बताई है कि वो टॉल है, वो थिन है, और उसको पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी आंखें जो है वो बहुत ही अंदर डूबी हुई है, दे आर संकन इन। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट का मतलब होता है कि उसकी हमेशा एक आईब्रो ऊपर रहती है। आप अभी उसके फ़ोटो में भी उसकी आइज़ को देख सकते हो, उसकी आइज़ और उसकी आईब्रो हमेशा एक साइड से ऊपर रहती है, जिससे कि ये इंडिकेशन मिलता है कि वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। एंड हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, मतलब कि उसका सर हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। अनदर मीनिंग टू दिस लाइन इज़ कि उसको कुछ ना कुछ चोट लगी होती है, जिसकी वजह से उसके सर पे हमेशा सूजन रहती है। You can understand it in both the ways. His coat is dusty from neglect. मतलब कि ये इतनी मस्ती करता है, इतना खेल कूद करता है, इतना गंदा होता है कि इसका पूरा फर जो है वो डस्टी हो जाता है, क्योंकि ये खुद का ध्यान नहीं रखता। His whiskers are uncombed. उसकी जो मुस्टैच है उसके फेस पे वो भी प्रॉपर नहीं होती है, वो भी पूरी उलझी हुई होती है। He sways his head from side to side. वो अपना सर पूरा टाइम यहाँ से वहाँ, एक साइड से दूसरी साइड हिलाता ही रहता है, घुमाता ही रहता है, जैसे कि एक स्नेक। दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पे मेटाफर है ये, सॉरी सिमिली है ये, जहाँ कंपैरिजन किया है कैट के हेड के मूवमेंट को स्नेक के मूवमेंट के साथ। लाइक वर्ड यूज़ किया है विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जिसका मतलब है कि ये एक सिमिली है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। आपको लगेगा कि ये शांति से सो रहा है, पर वो ऐसा कभी नहीं होता है, वो जाग रहा होता है। मैकैविटी, मैकैविटी, देर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी, फॉर ही इज़ अ फील्ड इन फिलाइन शेप। पोइट कहता है कि मैकैविटी जैसा दूसरा कोई पेट नहीं है। ये एक नॉर्मल एनिमल या नॉर्मल पेट नहीं है,
ये एक एनिमल के शेप में एक एनिमी है, ये एक मॉन्स्टर है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, मतलब ये आप जहाँ से पैदल जा रहे होंगे तो आपके बाजू में से भी पास हो सकता है। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, आप इसको चार रास्ते पे भी देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकैविटी इज़ नॉट देयर। पर आप जैसे ही आपको पता चलेगा कि कहीं कुछ गलत हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है, तो मैकैविटी तब तक तो वहाँ से गायब हो चुका होता है। Students, this is your poem written by T.S. Eliot, Macavity, the Mystery Cat. I hope the content of the poem is very much clear and understood. Thank you so much.